Enter the world of pharmacy. It held in world supremacy. Assalamu alaikum, dear viewers of my YouTube channel, The Easy Pharmacology, and my Facebook page, Dr. Syed Mubashir Official. I welcome you all in my lecture number 4. And besides this, I'm too much sorry for inconvenience that it has been a long time that I haven't delivered the lecture and I haven't uploaded on my YouTube channel. So sorry for inconvenience. But welcome you all again in my the Easy Pharmacology channel and my Facebook page, Dr. Syed Mubashir Official. Today we are going to study something new. If you remember that in my lecture number 3, if you will remember, then I had discussed regarding the medicine and the drug. In my previous lecture, I had told you about the medicine. We were studying the medicine, if you remember. And if you don't remember, you may go through my lecture number 3 on my YouTube channel. Medicine was composed of drug plus excipients. Okay? In my previous lecture, I had told you people regarding this one, medicine. Medicine is what? This is composed of the drug plus excipients. And in my previous lecture, I had told some points to you that if we are going to exclude this one, drug from the medicine, then what will happen? So today is lecture number 4. Today we are going to study that what will happen if we are going to exclude the drug. This drug which is actually producing the pharmacological effect. Okay. So lecture number 4, and today we are going to study two terms, placebo and nocebo. What are these two terms? I think being the pharmacy students, you may heard about one term, that is the placebo. What is placebo? What is placebo therapy? You people may be familiar with this term. But most of the students, most of the people may not be aware regarding the term of nocebo. So today we are going to study both these two terms. So what is placebo? That medicine which is free from drug or active constituents. Constituents. Placebo is what? This is that medicine which is formulated, but it is not containing the active constituent, or it is not containing the drug. Let's suppose I had told you people that medicine is what? Drug plus excipients. Okay? These two terms I had used for defining the medicine. But what happens in placebo? We are only keeping these excipients, okay? But we are excluding this drug. So placebo is such medicine which is free from the active constituent. Okay? So actually what happens that, and there is also the other word, the nocebo, but we will coming on that one. We are going to treat the patients with the placebo or placebo therapy. Placebo word is only for that medicine that is free from the active constituent, and the effects it is going to produce, those are known as the placebo effect, and the therapy is known as the placebo therapy. So these are the different terms which we are using. What happens that placebo, if you remember that the medicine is producing the effects due to its active constituent, but here in placebo we are excluding the active constituent. But in spite of this one, the placebo therapy is used and patients are getting the therapeutic effects. How it happens? There is the one reason.
although in placebo what we do, we exclude the active constituent. Okay, there is no any active constituent, only the placebo is containing the excipients. In spite of this one, the placebo shows therapeutic effects show करते हैं. So what is that reason? How it is possible? There is the one component which we are including in this one. Although we are not incorporating that component in this formulation, but we include or we incorporate that component when we are going to dispense the medicine, and the name of that component is the psychological component. Psychological component. There may be some confusion in mind that how it is possible that a medicine which is not containing the active constituent, and you know that all the pharmacological effects, therapeutical effects are produced due to the presence of the active constituent in the medicine. In spite of this, that you are excluding the active constituent, in spite of that, how it is possible? Actually, the effects, the pharmacological effects or therapeutic effects or the response produced by the placebo therapy depends upon few factors. Which are those factors? You may write down. Which are those factors? Number 1, suggestive power by physician, okay, or pharmacist. Number 1 factor which is responsible that the placebos are formulated with this reason that you know that if we are going to give the medicines के काफी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हमारे मेडिसिन है उसके काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं. तो अगर हम वो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं दे रहे, सिर्फ एक्सिपिएंट्स दे रहे, ठीक है ना, तो एक्सिपिएंट्स का तो ऐसा कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता, तो उनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा. लेकिन हम इसलिए हम प्लेसबो थेरेपी बनाते हैं कि हम पेशेंट को जब प्लेसबो थेरेपी देते हैं तो पेशेंट को ये पता नहीं होता कि मैं एक प्लेसबो थेरेपी ले रहा हूँ, मैं कोई ऐसी पिल, ऐसी कोई टेबलेट ले रहा हूँ जिसके अंदर वो एक्चुअल दवा है ही नहीं. लेकिन पेशेंट को ये मालूम नहीं होता, पेशेंट को हम दे देते हैं. लेकिन उसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि जब हम देते हैं एज अ फार्मासिस्ट और एज अ फिजिशियन, हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं प्लेसबो थेरेपी, तो व्हाट वी डू, वी सजेस्ट द पेशेंट. हमारा सजेशन पावर पेशेंट को देते हुए हम मेडिसिन की इतनी तारीफ करेंगे या उसको इतना अच्छा काउंसिल करेंगे, उसके अच्छे से इफेक्ट्स बताएंगे कि ऑब्वियसली लेट्स सपोज एक पेशेंट है, पहले किसी और डॉक्टर के पास जाता था या कहीं और से मेडिसिन लेता था, या किसी के कहने पर मेडिसिन ले ली, लेकिन उसको किसी ने फलाने जो है वो पता बता दिया कि फलान डॉक्टर बहुत अच्छा है. अगर वो उसके पास जाता है और डॉक्टर उसको प्लेसबो थेरेपी दे देता है, ठीक, लेकिन उसके साथ डॉक्टर उसको इतना अच्छा सजेस्ट करता है, इतना अच्छा पावरफुल उसकी सजेशन काउंसलिंग होती है कि पेशेंट का माइंड बन जाता है कि हाँ, दिस ड्रग विल ऑब्वियसली शो इट्स इफेक्ट्स. सो दिस द इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय. अच्छा, अगर ये बात आपको समझ में ना आती हो तो बेटा प्लेसबो के पीछे सारा रोल साइकोलॉजी का होता है. हम जो कंपोनेंट एक्टिव तो हम निकाल देते हैं, मेडिसिन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट तो हम निकाल देते हैं, लेकिन काउंसलिंग में हम साइकोलॉजिकल कंपोनेंट डाल देते हैं. जब हम काउंसिल करते हैं तो साइकोलॉजिकल कंपोनेंट उसमें डाल देते हैं और अच्छी काउंसलिंग, इतनी पावरफुल काउंसलिंग करते हैं कि पेशेंट का माइंड हम बना लेते हैं कि पेशेंट अब बाय माइंड वो चीजें वो बेटरमेंट फील करता है. ठीक है बेटा, लेट्स सपोज मैं आपको मिसाल दूं, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है बेटा, तो आपको जो भी तकलीफ है, साइन सिम्टम्स हैं, अब 2 डॉक्टर्स हैं, ठीक है. एक डॉक्टर के पास आप गए, तो जैसे डॉक्टर के पास आप बैठ गए तो डॉक्टर ने ना आपको केयरफुली सुना, ना कुछ ऐसे ही दवा दे दी, तो आपका एक माइंड बन जाता है कि भाई ये क्या हो गया.
अब वो जो है ना, दूसरे डॉक्टर के पास आप जाते हो, आपको डॉक्टर बहुत गौर से सुनता है, आपकी हर तकलीफ, आपकी हर साइन सिम्टम आप पूरा डिटेल में उस चीज़ डॉक्टर को बता देते हो। डॉक्टर बहुत मोहब्बत के साथ आपको सुनता है और फिर अच्छे तरीके से आपको काउंसिल करता है। तो आई थिंक ये आपकी प्रैक्टिस ज़रूर ही होगी कि आप वहीं पर बहुत सारी बेटरमेंट फील करते हो कि भाई ये तो डॉक्टर बहुत अच्छा है, आधी मेरी तकलीफ तो ख़त्म होगी। हालांकि आपने अभी ना उसने दवाई लिखी है ना आपने दवाई खाई है, लेकिन उसके बावजूद उसका जो एटीट्यूड था डॉक्टर का, जिसने आपको गौर से सुना, आपकी तकलीफ सुनी, तो आप वहीं पर फील करते हो काफ़ी बेटरमेंट। So what is the reason? Because this is the reason that the attitude, the power of the attitude, the power of the psychology, आपकी साइकोलॉजी बन जाती है कि हाँ भाई ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, कम से कम इसने मेरी बात तो सुनी, मेरी तकलीफ सुनी तो सही। तो ये चीज़ आपको जो है ना आपकी काफ़ी तकलीफ ख़त्म कर देती है, बावजूद इसके कि आप तकलीफ के साथ आए थे डॉक्टर के पास दवा के लिए, लेकिन डॉक्टर की जो है एटीट्यूड ने, डॉक्टर के रिस्पॉन्स ने, डॉक्टर की काउंसलिंग ने आपको वहीं पर ठीक कर दिया था। तो यही काउंसलिंग जब डॉक्टर या फार्मासिस्ट प्लेसबो थेरेपी देते हुए करते हैं, तो कैन यू इमेजिन वहाँ पर जब डॉक्टर देख रहा था, डायग्नोज कर रहा था पेशेंट को, पेशेंट की साइन सिम्टम सुन रहा था गौर फिक्र के साथ, उसके अच्छे एटीट्यूड की वजह से पेशेंट्स बाय माइंड काफ़ी अच्छा फील करते हैं। तो जब वो मेडिसिन लेंगे, पेशेंट बाय हैंड मेडिसिन लेंगे, हम उनको मेडिसिन देंगे और उस वक्त भी हम अच्छी काउंसलिंग करेंगे, तो कैन यू इमेजिन दैट व्हाट काइंड ऑफ द रिस्पांस विल बी प्रोड्यूस्ड, इट विल बी मच बेटर। ठीक है ना बेटा? तो हालांकि पेशेंट को तो नहीं पता कि ये प्लेसबो थेरेपी है, पेशेंट तो ये फील करता है ये भाई मेडिसिन ही है जो मैं यूजुअली लेता हूँ, लेकिन ये प्लेसबो थेरेपी, इसमें वो चीज़ है ही नहीं जो उसको रिस्पॉन्स है, लेकिन सजेस्टिव पावर, काउंसलिंग पावर जो है ना, इट इज गोइंग टू produce the response. So suggestive power of the physician and pharmacist, this is one of the factor on which the effects of placebo depends. Placebo के जो effects होते हैं वो depend करते हैं, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज जो है that is patient's expectation. Patient's expectation, वही बात कि ऑब्वियसली यहाँ पर साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, हमारे लाइफ के हर जो है एस्पेक्ट में बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली मेडिसिन के हवाले से तो और भी ज़्यादा है। ठीक है ना बेटा? तो पेशेंट की एक्सपेक्टेशन होती है, लेट्स सपोज कि आप कहीं पर किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो पहले से किसी ने आपको ये गाइड करते हैं इस डॉक्टर के पास जा रहे हो, हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा डॉक्टर है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन बन जाती है डॉक्टर के पास। तो फिर वो डॉक्टर भले आपको मेडिसिन प्लेसबो भी ना दे, जस्ट सुने तब भी आप ठीक हो जाते हो काफी, है ना? तो दिस इज द रोल ऑफ द साइकोलॉजी। सो बाय यूजिंग द पावर ऑफ साइकोलॉजी वी आर गोइंग टू अवॉइड द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स। हम चाहते हैं, क्योंकि नेट रिजल्ट क्या है? नेट रिजल्ट है कि भाई रेस्पॉन्स है, पेशेंट अच्छा फील करे। अगर वो बिना एक्टिव के और साइकोलॉजी से जो है सजेस्ट पावर से वो फील बेटर करता है, तो इट इज मच बेटर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हर मर्ज जो है, हर डिजीज जो है प्लेसबो से हम कर सकते हैं। कुछ ऐसी हैं जिनको हम बाय प्लेसबो वी कैन एंड बाय सजेस्टिव पावर हम ऐसा कर सकते हैं, उसको बेटर कर सकते हैं। ठीक है ना? जिनमें से जीआईटी डिस्टर्बेंस है, हेडेक है, इंसोम्निया है, तो ये चीजें, और इसमें काफी रिस्पांस रेट आया भी है स्टडीज। हालांकि बेटा टिल नाउ स्टडीज आर गोइंग टू बी कंडक्टेड, अभी तक ये फुली जो है प्लेसबो थेरेपी जो है ना वो एनालाइज नहीं हो पाई है कि कैसे ये सारी चीजें मतलब हो सकती है। स्टडी हो रही है लेकिन काफी इसके रिस्पांस रेट्स आ रहे हैं, काफी चीजें, काफी रिस्पांस रेट आ रहा है। जैसे कि मैं आपको बताता चलूं कि जो है इसमें हेड एक में जो रिस्पांस रेट है दैट इज 30 to 70%। मतलब अगर 100 पेशेंट्स को हमने प्लेसबो के थ्रू ट्रीट किया है, 100 में से 30 में से 70% पेशेंट, 30 में से 70% पेशेंट्स जो है ना वो उनका हेड एक सही हो गया है थ्रू द सजेस्टिव पावर। हमने उनको प्लेसबो दे दिए और उनको सजेशंस डॉक्टर की, पेशेंट की कुछ एक्सपेक्टेशंस थी। अच्छा, थर्ड जो है बिहेवियरल कंडीशंस, बिहेवियरल कंडीशंस। ठीक है, कंडीशंस कौन सी हैं? एटीट्यूड के हवाले से, बिहेवियर के हवाले से। तो ये तीनों
ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम यूटिलाइज करते हैं, साइकोलॉजी को हम इम्पैक्ट करते हैं ताकि रिस्पांस आए, और रिस्पांस आया है। स्टडीज शो दैट कि अगर किसी को हेडेक था और उसको प्लेसबो थेरेपी के थ्रू हमने ट्रीट किया था तो 30 से 70 पेशेंट्स आउट ऑफ 100 जो है वो ठीक हो रहे थे। इसी तरीके से जीआईटी डिस्टर्बेंस में आल्सो काफी पेशेंट्स ठीक हो रहे थे, 20 to 60%, जीआईटी डिस्टर्बेंस के 20 to 60% पेशेंट ठीक हो रहे थे। 20 to 60% patients are going to be cured, are getting the response by treating with the placebo therapy. And what the physician, the pharmacist were using their suggestive power. Okay? उसके अलावा जो है थर्ड वन इंसोम्निया। अब कोई ऐसा पेशेंट है जिसको नींद ही नहीं आती थी, ठीक है ना, तो जो है हमने उसको प्लेसबो थेरेपी दे कि भाई ये नींद की गोली है, तो वो बस समझता है कि हाँ भाई मैंने नींद की गोली खा ली है तो अब मुझे नींद आ जानी चाहिए। तो ऐसा रिस्पांस रेट किया है 50 to 80% जो है, दिस इज द रिस्पांस रेट टू ट्रीट द पेशेंट्स ऑफ इंसोम्निया बाय द प्लेसबो थेरेपी। सो आई थिंक टिल नाउ यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट कि जो है रीजन ये है कि हम प्लेसबो थेरेपी देते हैं, हम साइकोलॉजिकल पावर को यूटिलाइज करते हैं, बिकॉज साइकोलॉजी बेटा प्लेज अ ग्रेट रोल। सो हम साइकोलॉजी से बहुत सारी चीजें हम कवर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो हम वही साइकोलॉजी को यूज करते हुए हम प्लेसबो थेरेपी देते थे। पेशेंट तो बाय एंड फिजिकली तो मेडिसिन तो देखता है ना, अब पेशेंट को क्या पता, बहुत सारे हमारे माशरे में ऐसे हैं जो कि नॉन मेडिकल है, नॉन फार्मासिस्ट हैं, इवन अगर फार्मासिस्ट भी है तो फार्मासिस्ट को तो ये चीज पता हो सकती है, लेकिन काफी लोगों को तो ये मालूम नहीं है ना। तो ये चीज हम यूज करते हैं, पिल्स बनाते हैं, टेबलेट्स बनाते हैं, जिनमें सिर्फ एक्सीपेंट्स ज्यादा शुगर पिल्स होती हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हैं और हम अपना सजेस्टिव पावर यूज करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लेसबो। सो इन इट्स कंट्रास्ट देयर इज एन अदर टर्म जिससे काफी लोग, मेरे ख्याल से काफी लोग ऐसे हैं जो अनअवेयर हैं, द नोस्बो इफेक्ट। ये था प्लेसबो इफेक्ट। अब बेटा सिर्फ डिफरेंस ये है प्लेसबो और नोस्बो कि हम थेरेपी कौन सी देते हैं, प्लेसबो थेरेपी, ठीक है बेटा, प्लेसबो थेरेपी हम थेरेपी देते हैं प्लेसबो। अगर अब मैं प्लेसबो और नोस्बो में डिफरेंस बता रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेसबो इफेक्ट एंड द नोस्बो इफेक्ट। प्लेसबो थेरेपी के बाद अगर पॉजिटिव इफेक्ट्स जो है प्रोड्यूस हो, रिक्वायर्ड इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो, थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो, तो हम उनको बोलेंगे प्लेसबो इफेक्ट्स, ठीक है। अगर इसके कंट्ररी प्लेसबो थेरेपी के बाद कोई नेगेटिव इफेक्ट आ जाए, साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो या टॉक्सिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो, तो हम उनको बोलेंगे नोस्बो इफेक्ट्स। तो मतलब दीज आर द नेगेटिव रिस्पांस, ठीक है, नेगेटिव रिस्पांस, ठीक है बेटा, या साइड इफेक्ट्स यू में। तो जैसे कि मेडिसिन प्लेसबो की बात मैं नहीं कर रहा, मेडिसिन की बात कर रहा हूं। मेडिसिन के थेराप्यूटिक इफेक्ट्स भी होते हैं, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। लाइकवाइज प्लेसबो थेरेपी के भी थेराप्यूटिक इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो प्लेसबो मेडिसिन या प्लेसबो थेरेपी के जो थेराप्यूटिक इफेक्ट्स हैं हम उनको बोलते हैं प्लेसबो इफेक्ट्स, क्योंकि वो प्लेसबो, लेकिन वही प्लेसबो अगर कोई साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे तो हम उनको नोस्बो इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है बेटा। और ये भी डेटा है, स्टडी है कि ऑल दोज पेशेंट्स जिनको प्लेसबो के थ्रू ट्रीट किया गया था उनमें से 50% पेशेंट्स ऐसे थे, 50% पेशेंट्स में से नोस्बो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ था। नोस्बो मतलब साइड इफेक्ट। अब यहां पर भी एक कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को कि एक जब उसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है ही नहीं तो साइड इफेक्ट्स पर किस बात के। तो बेटा डिपेंड करता है कि एक फार्मासिस्ट या एक फिजिशियन पेशेंट को मेडिसिन देते हुए कैसे डील करता है। अगर पेशेंट फिजिशियन मेडिसिन की सारी अच्छी बातें बताता है तो पेशेंट भी अच्छी बातें फील करेगा। अगर डॉक्टर ने या फिजिशियन ने पेशेंट को मेडिसिन देते हुए
प्लेसबो थेरेपी देते हुए अगर उसको ये बता दिया कि भाई आफ्टर टेकिंग दिस मेडिसिन यू मे फील नॉजिया, यू मे फील द वोमिटिंग, यू मे फील द ड्राउजीनेस, तो अगर पेशेंट वो मेडिसिन प्लेसबो थेरेपी लेगा भी तो कुछ अर्से के बाद वो वाकई फील करेगा, हाँ भाई this is same thing which the doctor had told me. Oh, I'm feeling the drowsiness. Oh, I'm feeling some kind of vomiting and nausea. So how your doctor or how your pharmacist is going to counsel you powerfully, so that powerful psychological counseling impacts on your mind. तो वही चीज हम पे माइंड करती है। तो ये जो नोस्को के जो इफेक्ट्स हैं ये प्रोड्यूस होते हैं वहां पर जहां पर मतलब जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर टॉक्स अबाउट द पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स। अगर आपका जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो आपको प्लेसबो थेरेपी देते हुए उसके बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बता देता है, कुछ पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स बता देता है, तो आप वो पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स फील करोगे। ठीक है। दूसरी बात जो नोस्को इफेक्ट्स के प्रोड्यूस होने में जो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं भाई कॉस्ट ऑफ द थेरेपी। अगर डॉक्टर आपको ये बता दे कि भाई ये पिल जाके लो लेकिन ये इतनी महंगी है, तो वो भी एक चीज है, नेगेटिव चीज है। भाई इतनी महंगी दवा जो हम बंदा भी ले तो लेता है लेकिन फिर भी जो है ना वो मतलब बेटर फील नहीं करता कि इतनी कॉस्टली मेडिसिन में खा रहा हूँ, फायदा होगा नहीं होगा, तो एक डिप्रेशन में बंदा आ जाता है ना कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से, या ये बात सुन के भाई ये ज्यादा कॉस्टली है, हालांकि इतनी ज्यादा कॉस्टली ना भी हो लेकिन डॉक्टर ने आपको या फार्मासिस्ट ने आपको बता दिया कि भाई यू विल टेक दिस पिल बट दिस इज अ लिटिल बिट कॉस्टली, तो एक नेगेटिव पॉइंट ज़हन में बैठ गई। तो एक बंदा पहले से इस पॉइंट ने भी डिप्रेस कर दिया और ऊपर से डॉक्टर ने फार्मासिस्ट ने कुछ पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स बता दिए, उसने भी अपना रोल किया। अच्छा, एक और भी चीज काउंट होती है कि प्रीवियस एक्सपीरियंस विद द सेम ट्रीटमेंट। आपने एक साल पहले भी आपको जो है कोई तकलीफ हुई थी, आपने वो मेडिसिन ली थी, तो आपका एक एक्सपीरियंस है इस ट्रीटमेंट के साथ, भाई मेरे साथ ये हुआ था। अब इस दफा भी अगर आपको कोई ऐसी सेम पिल मेडिसिन मिल रही है तो आपको वो पिछला वाला एक्सपीरियंस याद आ जाएगा और यू मे फील समथिंग नेगेटिव। ओके, सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट। उसके अलावा जो है ये सारी चीजें जो है ना वो काउंट होती हैं फॉर प्रोड्यूसिंग द नेगेटिव इफेक्ट्स। अच्छा, इसको बेटा मैं और थोड़ा अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देकर कि सर हाउ इट इज पॉसिबल, व्हाट यू आर सेइंग कि एक दवा ऐसी जिसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है ही नहीं फिर भी उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी आ रहे हैं और नेगेटिव इफेक्ट्स भी आ रहे हैं, तो बेटा साइकोलॉजी प्लेज अ ग्रेट रोल। साइकोलॉजी प्लेज अ ग्रेट रोल। अगर प्लेसबो इफेक्ट्स का मैं आपको मिसाल दूंगा, मैंने वो आपको वो मिसाल दिया कि इफ यू आर गोइंग टू विजिट एनी डॉक्टर और डॉक्टर आपको जस्ट गौर से सुनता है तो आपकी आधी तकलीफ दूर हो जाती है। हालांकि अभी तो आपको प्लेसबो भी नहीं मिली, प्लेसबो मेडिसिन भी नहीं मिली, लेकिन अभी तक आप फील करें अच्छा। अब नोस्को इफेक्ट्स, अब देखिए बेटा, अभी जो करंट सिचुएशन है, पेंडेमिक सिचुएशन ऑफ द कोरोना वायरस। ओके, अब इसके जो साइन सिम्टम्स हैं, फीवर है, कफ है, चेस्ट का कुछ इश्यूज हैं। अब ये एक ऐसा एस्थमेटिक पेशेंट जो सालों से एस्थमा का पेशेंट रहा है, उसको फीवर वगैरह है या उसको खांसी या जो है ये सारी चीजें हो रही हैं उसको काफी अरसे से, लेकिन अब क्योंकि कोरोना वायरस का सीजन चल रहा है तो अब अगर किसी को फीवर भी होता है तो ही थिंक्स दैट भाई आई एम सफरिंग फ्रॉम द कोरोना, हालांकि उसको कोरोना नहीं है लेकिन उसका माइंड, क्योंकि अभी तक की कोरोना की सीजन चल रही है और कोरोना के जो साइन सिम्टम्स हैं, अगर किसी को नॉर्मल फ्लू भी हो जाता है तो वो इस चीज से सफर करता है भाई मे बी इट वुड बी द कोरोना। अगर किसी को बुखार हल्का सा हो जाता है, अगर किसी को छींक आ जाती है, अगर किसी को सांस फूल रहा है तो ही और शी इज थिंकिंग दैट ओह आई एम सफरिंग फ्रॉम द कोरोना। सो दिस इज द पावर ऑफ साइकोलॉजी। So this is all the role of the psychology which is utilized when you are going to treat the patients regarding the placebo therapy, and if you are going to counsel positively, it will produce the placebo effect. If you are going to counsel negatively, it will produce the nocebo effect. So positive and negative effects produced after the placebo therapy when you are going to counsel the patient. So depends upon that how you are going to counsel the patient. अब बेटा इस पॉइंट को जो है मद्देनजर रखते हुए I want to share few things extra that
अभी ये जैसे कि कोरोना वायरस का चल रहा है, तो बेटा इसमें एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है कि भाई एक पेंडेमिक सिचुएशन है, ठीक है, एक रियलिटी है। कोरोना की एक अपनी मौजूदगी है, एग्जिस्टेंस है, और उसके जितने भी इम्पैक्ट्स हैं सोसाइटी पर, पूरे वर्ल्ड पर, तो वो तो हो रहे हैं। लेकिन कोरोना जितना नुकसान कर रहा है उससे ज्यादा नुकसान व्हाट वी आर अवर एटीट्यूड, हम मुआशरे के जो लोग हैं, हम लोगों का जो एटीट्यूड रहा है टुवर्ड्स द कोरोना। अब हर इंसान एक न्यूज़ कास्टर बन गया है, कोई ना कोई खबर कोरोना की फैला रहा है। अगर एक बंदा जो है वो बिल्कुल ठीक है, उसको भी हम जाके वो न्यूज़ सुना देते हैं, तो वो भी यही फील करता है कि भाई हाँ मुझे तो कोरोना हो गया। तो बेटा वी शुड ट्राई आवर बेस्ट नॉट टू क्रिएट सच सिचुएशन, क्योंकि साइकोलॉजी बेटा प्लेज अ ग्रेट रोल। एक है फिगर है, हम बार बार लोगों को ये बताएं कि भाई इतने डेथ हो गए हैं और कोरोना के इतने पेशेंट्स हो गए हैं, तो भाई यहाँ कोई सा फुटबॉल मैच तो नहीं चल रहा कि एक कंप्लीट फिगर आएगी तो हम जीत जाएंगे मैच। भाई जितना नुकसान हो रहा है तो जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो उसको संभालेगा। आप जो है ये खबरें सोसाइटी में फैलाकर, क्योंकि हर इंसान के बेटा जो है पावर जो है थॉट्स का वो अपना अपना होता है। काफी ऐसे लोग हैं जिनको ये खबरें सुनकर जो है और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो वी शुड अवॉइड टू स्प्रेड सच काइंड ऑफ फिगर्स दैट द कॉज बाय द कोरोना वायरस। वी शुड अवॉइड टू शेयर सच न्यूज, क्योंकि अब सबको पता चल गया है कि कोरोना से बचने के जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो क्या है। अब हर बंदे को पता है, नाउ लेट इट गो। अब हर बंदा खुद ही वो उसको यूटिलाइज करेगा। अब आप जो है ना वो कोरोना से ज्यादा खतरनाक ना बनो। कोरोना तो आपके एस्थमा या आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अफेक्ट करता है, लेकिन आपका जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, वो तो डायरेक्टली लोगों के ब्रेन्स पर, माइंड्स पर अफेक्ट करते हैं। अगर वो उसको और भी कुछ होता है तो वो समझता है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम कोरोना। तो वी शुड अवॉइड फ्रॉम दीज थिंग्स। साइकोलॉजी का जहाँ तक रोल है तो बेटा साइकोलॉजी प्ले अ ग्रेट रोल। वही फार्मासिस्ट, वही फिजिशियन अगर पॉजिटिवली काउंसिल कराए तो पेशेंट इज गेटिंग द बेनिफिट। तो इन अवर सोसाइटी वी शुड ट्राई अवर बेस्ट टू बी हेल्पफुल, टू बी सॉफ्ट। देयर इज अ कोटेशन के टाइम हील्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग, टाइम हील्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग, गिव द टाइम समटाइम्स। कभी कभी वक्त दिया करो, क्योंकि वक्त किसी को जो आप देते हो तो तकरीबन हर चीज को हील कर देता है। एक और कोटेशन है कि जिससे भी आप मिलो उससे हद से ज्यादा आप नरमी से पेश आओ, हद से ज्यादा, क्योंकि हर इंसान कोई ना कोई खुद की जंग लड़ रहा होता है। तो वी शुड ट्राई आवर बेस्ट, वी शुड सूदिंग द माइंड्स ऑफ द पीपल। एक हम ऑइंटमेंट या क्रीम हम लगाते हैं अपने स्किन पर, उस पर सूदनिंग एजेंट्स होते हैं। तो एक वो चीज़ जो नॉन लिविंग चीज़ है वो स्किन को सूद कर सकती है, तो व्हाई शुड वी नॉट? हम बीइंग ह्यूमन बीइंग, our words should be such soothing agents that the minds and heart of the people should be getting the benefit from that one. So this is a message from my side on this pandemic situation. Try to soothe the people, try not to become the father of the corona by spreading such kind of the news amongst the world. So in next lecture we will try our best to learn something new. Hope that from this lecture you have got the ideas, you have got the concepts. So keep watching the Easy Pharmacology channel on YouTube channel and Dr. Syed Mubashir Official on my Facebook page. Till then, Allah Hafiz.